Hi everyone. We have another feather in our cap today, Raymond Bath, who scored an overall score of 7.5 band equivalent in PT. Let us talk to Raymond and speak to her about her experience of the examination, the techniques that she used, and the tips that she can give to the audience. Let's talk to Raymond. Raymond, first of all, tell the audience about yourself. Hello, sir. Myself Raymond Bhatt, and I've completed my graduation in BSc Nursing in year 2022. Then I have gained 1 year of clinical experience in my field. Which hospital or which institute were you in? Sir, I have gained experience from EMC Hospital, Amritsar. That is wonderful. And now what I'm really thankful for all the Weber's team. They have put great effort in me and helped me in achieving my desired score. Lovely. So what is your future plan now? Sir, I want to go to Australia to pursue my higher studies, especially in masters. So what was the band requirement there? The score requirement there? Sir, it was not less than 7 and overall 7. So that means 65 score. Yes, sir. So you scored a very good score, right? Yes, sir. Let us talk to our audience and tell them what you got and what can. Today, I will be talking to Raymond Bath. Her exam was on 18th of June. She gave the examination of PT Academic in Amritsar. And this is the episode number 10 of Exam Pe Charcha. If you haven't followed us on social media, do subscribe our channel Webers Educomp Limited, like, comment, and share. We have this beautiful world-class blog which you must visit. And we have got this Instagram page which tells you the global highlights of all the international examinations, what is happening worldwide. Raymond Bath, date of examination 18 June 2023, speaking 83, writing 74, reading 72, listening 86, overall 77, which is equivalent to 7.5 bands in IELTS. This is a scorecard. And now we will speak to Raymond about what she did in the examination and how did she get this beautiful score. Raymond, the stage is all yours. Sir. Tell us something about the speaking. Sir, in speaking, I got 7 read-alouts, which was on moderate level. And sir, जो मैंने read-alouts थे, वो मैंने देखा कि जो मैंने mostly practice किए हुए थे mock test में भी, मुझे वो ही आए थे. उसमें कई words थे जो difficult थे, but I was able to speak that words. Right. What about और जो repeat sentence थे, वो मुझे 10 आए थे, जिसमें से 6 जो थे easy level के थे और 4 जो थे वो lengthy थे. बाकी ओवरऑल मॉडरेट थे रिपीट सेंटेंस. और डिस्क्राइब में सर मुझे 3 आई थी, जिसमें से एक बार चार्ट था, एक लाइन चार्ट था, एक प्रोसेस था. वो मुझे मॉडरेट लेवल के लगे. और मतलब जो प्रोसेस चार्ट था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसमें. और जो रीटेल लेक्चर था वो इजी था, एक ही आया था मुझे. तो मैंने उसमें ट्राई किया कि मैं फ्रेजेस लिखूं प्रॉपर, ताकि इजी हो, इफेक्टिव हो बोलना. आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस सर मुझे 5 आए थे, इजी थे. मैंने सारे प्रैक्टिस किए हुए थे. और जो पीडीएफ देते हैं मैम, वो भी मैंने प्रैक्टिस किया हुआ था उसमें. What about the overall level of speaking? Sir, it was easy to moderate. It was easy to moderate. Yes, sir. So overall, you were happy with this? Yes, sir. Okay, wonderful. So let's proceed further and let us. Your writing is pretty complicated. In summarize, yes, sir. You got one easy task and then you got 2 essays. So please tell us about that. It was quite surprising, sir. Once I got shocked when I received second essay. The first essay was I wrote points on driving and wrote about 260 words, and I completed in 17 minutes. And second essay, I wrote about 230 words, and I also completed this essay in 17 minutes. Sir, I want to suggest that in writing, typing speed matters a lot. So secondly, you need to keep a check on your clock timing. So side by side time भी देखते चलो कि कितना हुआ है, कितना रह गया है. और अपना पूरा जो टाइम है वो इक्वली डिवाइड करो पैराग्राफ्स में. क्या मतलब अपने इंट्रोडक्शन को कितना टाइम डिवोट करना है, बॉडी पैराग्राफ्स को कितना डिवोट करना है, और कंक्लूजन के लिए कितना डिवोट करना है, ताकि आपके पास 3 to 4 मिनट्स हो कि आप अपने ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स को चेक कर सकते हैं लास्ट में. तो आप कहना चाहते हैं कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? यस सर. रिवाइज करना बहुत मैंडेटरी है अच्छी स्कोर के लिए. बिल्कुल ठीक बोला. और क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आप राइटिंग में?
दैट्स कि पूरा जो टाइम है वो इक्वली डिवोट करे, जैसे 30 सेकेंड्स ले, पूरा स्टेटमेंट को रीड करे, अंडरस्टैंड करे, उसके बाद 3 to 4 मिनट्स में इंट्रोडक्शन कंप्लीट करे इन 60 वर्ड्स। फिर उसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं उसके लिए आप 8 to 10 मिनट्स डिवोट कर सकते हैं। तो जो कंक्लूजन है उसके लिए आपको 3 to 4 मिनट्स इनफ है सर। तो That- मैं जो मैंने राइटिंग मतलब 16 to 17 मिनट्स में कंप्लीट कर ली थी अपनी, तो बाद में मेरे पास 3 to 4 मिनट्स थे ताकि मैं अपने पूरा जो मैंने ऐसे लिखा है उसका एनालिसिस कर सकूं, कोई भी मुझे मिस्टेक फाइंड होती है उसको मैं रिकरेक्ट कर सकूं अपना। परफेक्टली फाइन। अब अगली Yes, sir. मॉड्यूल की बात करते हैं, रीडिंग के बारे में बताएं जी। सर रीडिंग एमसीक्यू सिंगल मुझे एक आया था, इजी लेवल का था, और जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस थे, मल्टीपल आंसर, वो मुझे एक आया था, वो भी इजी था, बट मुझे उसमें क्वाइट ट्रिकी लगा कि बहुत हाई लेवल की वोकैबुलरी यूज की थी, और आंसर जो था वो इजीली मतलब लोकेट नहीं हो रहा था पैराग्राफ में, और पैराग्राफ भी काफी लेंथी था उसमें। जो रीऑर्डर पैराग्राफ थे वो मुझे 1 से 2 आए थे। फर्स्ट जो रीऑर्डर पैराग्राफ था वो इजी था, और सेकंड जो था वो मॉडरेट लेवल का था, बट ओवरऑल समझ लग जाता था अगर आप कंसंट्रेशन के साथ करो। फिल इन द ब्लैंक्स सर मुझे 6 आए थे, इजी लेवल के थे, और वो इजीली मोस्टली वो कैबलरी के बेस पे थे। और रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स थे जो थे वो मुझे 6 आए थे, वो जो थे वो मुझे ग्रामेटिकल के बेस पे आए थे, और कई जो फिलअप्स थे वो काफी ट्रिकी थे, लोकेट करना डिफिकल्ट था। ओवरऑल जो रीडिंग का लेवल था सर मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल था आपका। यस सर। इसमें क्या एडवाइस देंगी आप हमारे ऑडियंस को? कि आप टाइम प्रैक्टिस करते रहे, मोस्टली जो आप रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और रीडिंग राइटिंग फिलअप्स है जो मोस्टली ज्यादा स्कोर प्रोवाइड करते हैं आपके एग्जामिनेशन पे। सो इन पे आप ज्यादा फोकस करें रादर देन जो अनइम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पे आप ज्यादा वर्कआउट करें कि ये जो आपके पॉइंट्स है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आप डिजायर्ड स्कोर अचीव कर सकें। राइट। क्योंकि जो रीडिंग, लेट अस टॉक अबाउट लिसनिंग नाउ। इसके यस बारे सर। में सो समराइज स्पोकन टेक्स्ट आया था सर, मुझे एक आया था, इजी था। इस पे भी मैंने ट्राई किया कि मैं पूरे फ्रेजेस यूज करूं, कीवर्ड्स ना यूज करूं, क्योंकि अगर हम कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं तो वो लेस मार्क्स कैरी करते हैं, रादर देन अगर हम फ्रेज यूज करें तो हम इजी होता है कि हम पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं उससे, और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। और एमसीक्यू सिंगल जो था वो मुझे मॉडरेट लेवल के आए थे, एमसीक्यू मल्टीपल काफी ट्रिकी थे, मतलब उसकी जो ऑडियो की स्पीड थी वो भी काफी ज्यादा फास्ट थी। और जो एक मैं चीज बताऊंगी यहाँ पर कि जो साइड पे जो वीडियो प्ले होती है, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, कि उस पे ना ध्यान दें, फोकस आप अपने आंसर्स पे करें, और ट्राई करें कि कंसंट्रेशन के साथ पूरा सुने ऑडियो को रादर देन सीइंग द वीडियो। जो ब्लैंक्स थे वो इजी आए थे, मुझे 2 आए थे, और जो वर्ड्स इसमें थे लाइक अडेप्ट, सक्सेस, इंडिविजुअल, वो भी इजी थे, कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग नहीं था इसमें। और इनकरेक्ट हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स थे वो इजी आए थे मुझे। जी। और इसमें भी कंसंट्रेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि स्पीकर ने कब फास्ट हो जाना है यहाँ पर। परफेक्टली फाइन। तो यस सर। सो मिसिंग वर्ड मुझे 2 आए थे, मॉडरेट लेवल के थे सर। और हाईलाइट करेक्ट समरी मुझे एक आई थी, वो मतलब उस इजी थी, वैसे इजी टू अंडरस्टैंड थी, बट काफी 3 to 4 लाइंस की थी वो। और जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन है वो मुझे 3 आई थी, इजी थी वो, 8 to 10 वर्ड्स की थी, और कोई भी उसमें डिफिकल्ट स्पेलिंग नहीं था, इजी टू अंडरस्टैंड था। बाकी ओवरऑल लिसनिंग का लेवल जो था वो इजी था सर। क्या टिप्स देंगी आपको हमारे ऑडियंस को इसमें? सर आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जो आप इसमें कंसंट्रेशन रखें पूरी शुरू से ही, और जो इसमें जैसे मेन पार्ट्स हैं यहाँ पर, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे पीटीई में, ये बहुत मार्क्स कैरी करते हैं एज वेल एज इन राइटिंग ऑल्सो। सो इस पे ज्यादा फोकस करें आप, और कंसंट्रेशन मैटर बहुत करती है इसमें। राइट। तो क्या ट्रिक आपने यूज किया रिपीट सेंटेंस में या डिक्टेशन में, जो लोगों को बहुत सिरदर्द का विषय बना हुआ है आज की डेट में? सर जैसे डिक्टेशन आती है ना, जैसे वो स्पीकर स्टार्ट होता है तो मैंने उसी टाइम मतलब जितने भी वर्ड्स मेरे से टाइप हुए मैंने उसी टाइम टाइपिंग शुरू कर दी थी, और जो बाकी के वर्ड्स थे वो मेरे माइंड में थे, और मैं रिपीट करती गई पूरी लाइन को कि उन्होंने क्या बोला है। तो मतलब जो इसमें ये भी होता है कि अगर आप
या कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको वर्ड्स है, जैसे कोई भी स्पेलिंग है आपको कि आपको डाउट है कि इनकरेक्ट होगा, तो आप उसे मतलब अपने दूसरे वे में भी लिख सकते हैं कि वो करेक्ट हो। राइट, तो कोई ऐसा ट्रिक बताएं जो आपको बहुत अच्छा लगा सारे पीटी में, कोई स्ट्रैटेजी, कोई ट्रिक ऐसा जो आपको बहुत आपके काम आया जो। सर, ड्यूरिंग माई क्लासेस आई रेगुलरली गिव मॉक टेस्ट। सो That मैंने was very मतलब important. यस सर, सारे मॉक टेस्ट दिए हैं मैंने, और डेली इवैल्यूएशन होती थी और डेली एनालिसिस करती थी मैं, अपने जो भी मिस्टेक्स होती थी मेरी उसे मैं डेली मैम के साथ भी डिस्कस करती थी कि क्या मिस्टेक है, कैसे इम्प्रूव करें। तो आई वर्कड आउट ऑन माई मिस्टेक्स। Thank you so much. It was very, very informative session, Raymond. Thank you so much for it, and wishing you all the best for your future endeavors. थैंक यू सर, नाइस टू टॉक।